Now that I have decided to help you in reaching one step closer to CSE 2024 and help you in reaching towards your goal, I welcome all in the Anjan Kalash IS session of One Step Closer, and this is day 3 topics. गंगा रिवर सिस्टम हम करेंगे, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करेंगे एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री के, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पॉलिटी. These I have kept slightly on the lighter side for the very simple reason that this is going to be extremely overwhelming मतलब बहुत ज़्यादा ही enriched होने वाला है. We have to remember a lot of information. So please see the slides first of all so that you understand that how in depth are we going to cover this. And all of these is taken from NCERT. External कुछ भी नहीं है. It's just that I have added the maps from NCERT. So आपको दिख रहा है कि ये बहुत लंबा होने वाला है the गंगा रिवर सिस्टम पे डिस्कशन, and therefore these are on the lighter side. Now why am I choosing this? Because देखो, अगर आप NCERT एक बार को ब्राउज करते हो, NCERT के चैप्टर्स को देखते हो, दिस इज़ क्लास 11th ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे ये इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज बता रहे हैं. विद इन दैट इंडस सिस्टम सिर्फ थियोरेटिकली so much information is given. Then Ganga system, theoretically so much information is given which will cover just now. Then Brahmaputra, so much is given. Then peninsular पे आते हैं तो फिर peninsular के बहुत सारे rivers cover करने हैं. Now it becomes really difficult for us to remember them. ठीक है, reading them is very easy, but remembering them and reproducing in the exam is really difficult. So that's the task we are choosing कि हम एक बार में एक ही river system को करेंगे but अच्छे से करेंगे so that we remember it and we have got enough time to revise it. ठीक है, चलो, this is the segment from NCERT. ठीक है, and I have just taken class 11th NCERT for this. कोई external source नहीं है except these maps. The Ganga system is the most important river of India. ये Himalayan river system का part है that you have to remember. ठीक है, of course basin and cultural significance, the Ganga river is really important from both perspective. So the first question that will come to your mind is about the origin of Ganga river, कि ये rise कहाँ से करता है. Theoretically what we are reading, it is rising in the Gangotri glacier. Now the questions have been asked from the glacier. ठीक है, पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन ग्लेशियर से, so please do not take this segment lightly. I'll just show you. ग्लेशियर ऑप्शन में भी रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट द डायरेक्टली रिवर वाला बट ऑप्शन में रहा है. ग्लेशियर वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन में भी रहा है एंड ग्लेशियर का लोकेशन भी पूछा हुआ है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स एंड ग्लेशियर ऑल्सो इट इज आस्क्ड. तो अब आपको समझ में आएगा. देखो फिर से ये वाटर और ग्लेशियर, तो चलो दो क्वेश्चन को हटा भी देते हैं. सो द अदर टू क्वेश्चंस जहाँ हमने ग्लेशियर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंटर देखा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो उनको हम मैप में गलत नहीं कर सकते हैं. वन इज दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ग्लेशियर एंड रिवर आपको मार्क करना था और यहाँ पे स्पेशली किसी भी ग्लेशियर का लोकेशन पूछा हुआ है. सो विल ट्राई टू सी दैट हम कैसे उसको यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं. So the first information that you are getting from here is the origin is in the Gangotri glacier. गंगा गंगोत्री याद रहेगा. पहले देख लो गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, यहाँ देखो. ठीक है, यहाँ कहीं की बात हो रही है, दिस लोकेशन. just notice on whatever I am telling. इसको मैंने लिख भी दिया है. Just notice on what I am telling and do not try to divert your mind seeing elsewhere. Everything I'll cover. Whatever is present on the screen relevant for this particular session I'll cover. सेकेंड लाइन क्या कहता है, नियर गौमुख इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. सो यू गॉट द स्टेट, यू गॉट द डिस्ट्रिक्ट, यू गॉट द प्लेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गॉट द ग्लेशियर. सो उत्तराकाशी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है. ठीक है, बट व्हेन इट इज वी आर सीइंग द ओरिजिन, देयर इज नो गंगा नेम रिटन. द नेम दैट इज यूज्ड इज भागीरथी. गंगा तो यहाँ यूज हो रहा है, राइट. गंगा इज बीइंग यूज्ड हियर. But here from the origin the name that we see is Bhagirathi. So what's that whole story about? Now you see आगे. Now it cuts to the central and the lesser Himalaya. For that you need to know about the Himalayan system जो हम अपने physical उसमें पढ़ते हैं ना, Himalayan features, physical features of India. So you do Himalaya separately, but abhi that's not the core thing to do in this lecture. So we'll focus on the main part. Then comes another point, that is Dev Prayag. Now you see, you will see here I have given A noting, here B, here C. ठीक है, और उसके अलावा आप देखो यहाँ पे स्मॉलर a लिखा हुआ है, इसको I'll just mark स्मॉलर b. ठीक है, उसके अलावा here you will also see कि 1 2 3 4, तो बहुत सारे मार्किंग्स हैं and all of them are given here also in the map. So just focus. A हो गया भागीरथी. Where is भागीरथी? Just seen. Then at देव प्रयाग, मतलब ये कोई तो जगह है ना, कहीं पे कुछ तो हो रहा है. So देव प्रयाग कहाँ है? This one, number 1.
द भागीरथी मीट्स अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ है, ये देखो, दिस वन। सो बी इज अलकनंदा, बी इज अलकनंदा। ये हो गया ए भागीरथी, बी अलकनंदा। दे आर मीटिंग वेयर, दे आर मीटिंग हियर, this is number 1, this is Devprayag. Most of the state examinations ask this question कि the meeting point of Bhagirathi and Alaknanda is called as what, because this is Panch Prayag. प्रयाग मतलब मिलना, 5 नदी मतलब 5 ऐसे मिलान वाले प्लेसेस हैं। देखो, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि यू नो दो रिवर्स मिल रहे हैं तो कौन से प्रयाग पे मिल रहे हैं। देयरफॉर जस्ट फोकस ऑन द स्मॉलर सेगमेंट्स। सो अभी के लिए विल जस्ट रिमेंबर भागीरथी एंड अलकनंदा, जब ये दोनों मिल जाते हैं, हियर आफ्टर इट इज़ नोन एज गंगा। सो सी इज़ गंगा, याद हो गया। देव प्रयाग पे, दिस इज देव प्रयाग, भागीरथी एंड अलकनंदा एंड मीटिंग, आफ्टर दैट इट इज़ कॉल्ड एज गंगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज गंगा, इतना याद हो गया। नाउ द ओरिजिन ऑफ भागीरथी, दैट वाज द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख, उत्तराकाशी, उत्तराखंड, ये तो हमने रट लिया, याद कर लिया। बट वॉट अबाउट दिस अलकनंदा रिवर, इसके बारे में भी तो समझना है। सो नाउ सी दिस अलकनंदा रिवर। नाउ अलकनंदा रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन दी सतोपंथ ग्लेशियर। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ पे क्या था, गंगोत्री ग्लेशियर। आई होप दोज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, नाउ दिस सतोपति ग्लेशियर इज अवर बद्रीनाथ। आपने ये सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस सुने हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, आपने सुना ही है। तो बद्रीनाथ के पास में सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का जो ओरिजिन हो रहा है। नाउ हियर एक्चुअली ये जो ओरिजिन हो रहा है ना, ये 2 रिवर्स, ये भी 2 रिवर्स के मिलने से हो रहा है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ 2 रिवर्स, 2 ट्रिब्यूटरीज इफ यू से सो। वन इज धौली, देखो धौली गंगा का तो मार्किंग किया हुआ है, दिस इज मार्क्ड, ठीक है। एंड अनदर इज विष्णु गंगा। विष्णु गंगा इज नॉट मार्क्ड बट आई हैव रिटन द प्लेस फॉर इट। दिस इज नियर माना पीकिंग द चमोली। चमोली आपने हमेशा सुना होगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। अब देखो ये कुछ यहाँ के आसपास है, समवेयर नियर दिस, नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइसली बट समवेयर हियर। सो विष्णु गंगा हो गया, धौली गंगा हो गया, ठीक है, ये मिल के अलकनंदा, ठीक है। सो दैट यू विल रिमेंबर। नाउ दे मीट वेयर, एट जोशी मठ और विष्णु प्रयाग। ये दिख रहा है, जोशी मठ और विष्णु प्रयाग, दिस इज नंबर 2। सो दिस इज ऑल्सो यू विल रिमेंबर। अनदर प्रयाग, देव प्रयाग हमने कर लिया, विष्णु प्रयाग हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देर आर सर्टेन अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा ऑल्सो। देखो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दी थी, दैट धौली एंड विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा रिवर, ओरिजिन कहाँ है, सतोपंथ ग्लेशियर, अब बद्रीनाथ। आई होप इतना याद हो गया होगा, इस स्लाइड की इतनी इन्फॉर्मेशन तो याद हो गई होगी, वॉट एवर आई हैव रिटन हियर। दिस ऑल्सो, जो भी अभी 2 हमने करा है, याद होना चाहिए, ठीक है। आप टाइम ले लो पॉज कर करके, आई एम ऑल्सो टेकिंग इट स्लो ओनली। चलो नेक्स्ट क्या है, सम अदर ट्रिब्यूटरीज। पिंडार, पिंडार देखते हैं कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, पिंडार दिख रहा है। इट जॉइन्स इट एट कर्ण प्रयाग। इधर से अलकनंदा तो आ ही रही थी, इधर से पिंडार आ गई, यहाँ ज्वाइन हो रही है, ज्वाइन हो रहा है तो कौन सा प्लेस है, कर्ण प्रयाग, नंबर 3। देन मंदाकिनी और काली गंगा मीट्स एट रुद्र प्रयाग। फिर से देखो अलकनंदा आ रहा है और यहाँ पे देखो इधर से, ये देखो अलकनंदा आ रहा है, इधर से मंदाकिनी और काली गंगा, वेयर दे आर मीटिंग, रुद्र प्रयाग। यहाँ पे in the theoretical they have given the information on 4 prayags only, but of course the 5th one also you have to remember, so I have written here, that is Alaknanda and Nandakini, so they are meeting here at Nanda Prayag, ठीक है। 4th तो theory में भी लिखा हुआ है, but 5th also you'll remember to be able to cover the whole of Panch Prayag. Now so भागीरथी and Alaknanda, पहले तो ये पूरा अलकनंदा के बारे में, this is only about Alaknanda, and overall भागीरथी and Alaknanda when they are meeting, now they are forming Ganga. अब ये तो पूरा इधर ठीक है हिमालय सिस्टम में हो गया। नाउ द गंगा एंटर्स प्लेन ऑल्सो, प्लेन एरिया, हम फर्टाइल प्लेन पढ़ते हैं ना, इधर देखो भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, तो गंगा प्लेन एरिया में भी तो एंटर कर रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना गंगा का कोर्स। ये यमुना का है, ठीक है, यमुना ऑल्सो ज्वाइंस गंगा, बट विल रीड अबाउट यमुना लिटिल लेटर, अभी तो गंगा पे फोकस करेंगे। तो गंगा पे फोकस करेंगे तो अभी इतना को समझो। सो ये मिला ऋषिकेश होते हुए यहाँ, इसीलिए दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऋषिकेश एंड हरिद्वार, है ना, जाते हैं ना लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए और गंगा जल लाने के लिए वहाँ पे। हरिद्वार इज द एरिया वेयर द गंगा एंटर्स द प्लेन्स, इधर से गंगा आई, एंटर द हरिद्वार प्लेन्स, ठीक है। देन द कोर्स ऑफ गंगा रिवर इज, इट फर्स्ट फ्लोज साउथ, देन साउथ ईस्ट, देन ईस्ट, एंड देन फाइनली डिवाइड इनटू, स्प्लिट इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी, भागीरथी एंड हुगली। अब और समझते हैं, हाउ विल यू
विजुअलाइज इट। तो आप बस कोर्स ध्यान रख लो, इधर से आ रही है, साउथ आ रही है, ठीक है, साउथ कंटिन्यू करते करते थोड़ा सा साउथ ईस्ट ऑल्सो, देन ईस्ट ऑल्सो। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट कोर्स बट लाइक मतलब थ्योरी में उन्होंने यही आपको विजुअलाइज करने को कहा है। एंड देन इट इज़ डिवाइडिंग। अब डिवाइडिंग हमने दो नाम पढ़ा, भागीरथी वापस से, ठीक है, एंड हुगली। सो यू सी हुगली हियर, बंगाल रीजन में हुगली हियर। एंड इफ यू सी दिस इज एन ऑफिशियल डायग्राम टेकन फ्रॉम द उत्तराखंड का गवर्नमेंट का कोई सोर्स था, ठीक है, बट ऑफिशियल है ये। अब यहाँ पे देखो, ये और सिंप्लीफाई कर देता है। यू हैव ऑलरेडी सीन इट इन द मैप्स, अब इस पे फोकस करते हैं। सो उत्तराखंड हिमालयास, गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख, यहाँ से एमिनेट होता है क्या, भागीरथी, एंड देन भागीरथी एंड अलकनंदा बिकम्स गंगा। इतना तो क्लियर है, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं। बट अलकनंदा ऑल्सो मीट्स अदर रिवर्स, ठीक है। सो भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स एट देवप्रयाग, अलकनंदा मीट्स धौलीगंगा एट विष्णुप्रयाग, अलकनंदा मीट्स पिंडार एट कर्णप्रयाग, अलकनंदा मीट्स नंदाकिनी एट नंदप्रयाग एंड मीट्स मंदाकिनी एट रुद्रप्रयाग। हमने कर लिया अभी, वी हैव डन ऑलरेडी दिस वन। अब गंगा आई, एंटर करना शुरू किया नियर ऋषिकेश। फॉरगेट अबाउट दीज माइन्यूट प्लेसेस, दिस इज नॉट दैट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। Just focus on what we have to remember. This is an official document, like official diagram. So of course they have given so many information. हमको सिर्फ काम का याद रखना है। Moreover, आप कुछ और भी ध्यान रख लो। चलो मैं उस पर थोड़ी देर में आती हूँ because I have highlighted it. Let's just focus on गंगा आ रही है ऋषिकेश, then turn southwards. अभी हमने पढ़ा the first course है southwards, है ना, हरिद्वार में, ठीक है। अब हरिद्वार में बहुत सारा चीज़ है जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हमें नहीं जाना है। देन टर्न साउथ ईस्ट, ठीक है, बिजनौर, नरोड़ा, फरुखाबाद, यहाँ पे कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, सुराव, अब इतना नहीं, इलाहाबाद एटसेट्रा, इतना टेंशन नहीं लेना है। बस साउथवर्ड हमने समझ लिया, हरिद्वार, फिर साउथ ईस्ट हमने समझ लिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा साउथवर्ड टर्न होती है, फिर बाइफकेट करती है। ऑल्दो वहाँ उन्होंने ईस्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ थोड़ा सा क्योंकि बिहार झारखंड की तरफ एंटर करी है, इस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाइफोकेट इनटू हुगली एंड पद्मा वाला फिर आगे हम बांग्लादेश में जब पढ़ेंगे ना, आगे जा करके ब्रह्मपुत्र और ये सब पढ़ेंगे, तो विल कम टू दिस अगेन बिकॉज यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम आ जाता है। अभी के लिए द नेम्स दैट यू हैव सीन इज हुगली बिकम्स भागीरथी एंड देन अगेन टर्न साउथवर्ड्स इनटू बे ऑफ बंगाल। सो ओरिजिन इज फ्रॉम दिस एंड फाइनली इट इज ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल एंड नाउ दिस इज द कोर्स दैट इट इज टेकिंग। आई होप this diagram has given you a better picture. So यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है NCERT में we have done. Of course you'll have to remember, for that you'll have to revise it multiple times, right? Now more detail about the river. The length is 2525 kilometer. So when you will prepare the whole of Himalayan system, Indus, Ganga, Brahmaputra, तीनों के लेंथ देख लेना, ठीक है। तीनों का लेंथ देखने के बाद कंपेयर करना which has the largest length, which has the smallest, just arrange it basically. Now what are the states in which it covers? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal primarily. थोड़ा सा झारखंड को हल्का सा ये करते हुए जाती है, बट प्राइमरीली जो हमें स्टेट देखना है वो 4 ही देखना है। उत्तराखंड मेजरली, ओरिजिन एंड एवरीथिंग, देन ये वाला जो सारा पूरा ऑफकोर्स एरिया है इधर, ये पूरा यूपी का है, ठीक है। देन इधर बिहार में मेजर है ही, वी नो बिहार, एंड फिर वेस्ट बंगाल में तो फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल। सो 4 स्टेट्स आप याद रखोगे। नाउ ऑफ कोर्स इट इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, ये तो उन्होंने खैर बता ही दिया, बट यू प्लीज कंपेयर द लेंथ एज वेल। ओके, नाउ इट हैज़ अ नंबर ऑफ पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। पेरेनियल जो साल भर भरे रहते हैं, जो नहीं भी भरे रहते हैं, सीजनल होते हैं, मतलब हर तरह के रिवर्स जो हैं, इट इज़ हैविंग so much of it. It originated the Himalayas in the north and even in the peninsula in the south. So we'll talk about it जब हम जैसे जैसे उन details पे पहुँचेंगे. There are certain tributaries. So you'll see here that 2 terms are used, tributary and distributary. Again, this we have to do in the details of the drainage system, but just for the clarity and understanding, remember the point that I'm telling you right now. Distributary, dis मतलब distribute हो रहा है, ऐसे याद रख लेना, मतलब बंट रहा है, ठीक है। तो if something is coming like this and it is getting bifurcated, then these are the distributaries of the original river. But if कुछ ऐसे जा रहा है और इधर से कुछ आके इसको ज्वाइन कर ले रहा है, ठीक है, something is going like this, let's say ये इधर गंगा ऐसे चल रही है, इधर से यमुना ने इसको ज्वाइन कर लिया, so यमुना becomes the tributary,
समझ आ रही है? और जहाँ पर बाइफिकेशन हो रहा है, व्हेन इट इज़ बाइफिकेटिंग, यहाँ से बाइफिकेट हो रहा है हुगली और इसमें देखो ऐसे आते 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 यहाँ पे बाइफिकेट हो रहा है, सो दैट इज distributary. I hope now you'll remember. So now if you see the Ganga system, Ganga river system, हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो you'll see that some rivers are joining it from here, this side, some are joining it from here. ठीक है? Now if the river has started like this and it flows like this, so river का left side क्या हो गया? ये वाला हो गया, और river का right side ये हो गया. If you can imagine, because this is the direction. सो आपको इसका राइट इधर से मिलेगा ना. डोंट लुक फ्रॉम योर साइड इट विल बी राइट एंड लेफ्ट, बट यू हैव टू सी द कोर्स ऑफ द रिवर. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग लाइक दिस, सो दैट बिकम्स द लेफ्ट एंड दिस बिकम्स द राइट. तो इधर इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं और राइट क्या क्या हैं. देखो, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर. गंगा भी है, सॉरी यमुना भी है, ये भी याद रखना है, वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी. ठीक है, तो वो हम समझेंगे अभी किधर से है, बट अभी आप याद रखोगे यहाँ पे सोन रिवर. एंड लेफ्ट बैंक में देखो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, लाइक रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. फिर ये बे ऑफ बंगाल में नियर सागर आइलैंड डिस्चार्ज हो जाती है. तो ये तो हमने चलो कर लिया. नाउ लेट्स कम टू द दीज ट्रिब्यूटरीज. देखो इधर से गंगा रिवर ऐसे आ रही है, तो if it is coming like this, this is the left of it and this is the right of it. So right से एक तरफ तो सोन हो गया, मेजर है, इंपॉर्टेंट है. सोन रिवर कहाँ पे? पटना के पास में ज्वाइन करता है. देन यमुना भी है, ये देखो यमुना ऑल्सो ज्वाइंस, और यमुना सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पर है. सो इसका ओरिजिन कहाँ है? यमुनोत्री में. और यमुना के भी फिर कुछ अपने ट्रिब्यूटरीज हैं, बट विल कम टू इट व्हेन वी कम टू द सेक्शन ऑफ यमुना. अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द रिवर्स ऑफ गंगा, मतलब ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. ठीक है, वो याद रखो. चलो, तो ये तो हो गई राइट वाली. लेफ्ट पे आते हैं. व्हाट आर द नेम्स दैट वी आर सीइंग? रामगंगा हमने देख लिया. देन वी हैव गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी. गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी. ठीक है, दीज आर द वंस. महानंदा इज ऑल्सो हियर. इन दिस वन यू माइट नॉट रीड इट, बट आई शो यू. परेशान क्यों होना है, कहीं ना कहीं किसी मैप में तो मिलेगा ना. देखो महानंदा यहाँ मिल रहा है, इधर से आ रही है. कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, गोमती हो गया, रामगंगा हो गया. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट हमने इधर से देख लिया. सोन हमने इधर से देख लिया, और यमुना हमने इधर से देख लिया. ये कुछ याद हो गया. अब इसका सीक्वेंस आपको याद करना है. ठीक है, ये तो यू विल हैव टू रिमेंबर. तो इसीलिए डोंट ओवर प्रेशराइज योर सेल्फ विद ऑल द रिवर सिस्टम्स. एक ही बार में मत करना ये गलती. यूट्यूब पे बड़े ऐसे वीडियोस भी पढ़े हैं, आप लोग भी पता नहीं क्यों ही पढ़ लेते हो. प्लीज़ समझो, इतने सारे चीज़ें नहीं याद कर पाएंगे. एक बार में इतना ही काम करो. जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस हियर. चलो और आगे बढ़ते हैं. इनफैक्ट यू कैन ब्रेक दिस सेशन ऑफ गंगा ऑल्सो इंटू 2 पार्ट्स इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रिमेंबरिंग ऑल ऑफ इट. ठीक है, तो वीडियो तो आपका बन जा रहा, आप भले इसको बाइफिकेट करके देख भी सकते हो, बट अगर एक बार में पहले आज सुनना है तो सुन लो, फिर देख लो कि कितना याद हो पा रहा है एक बार में, देन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ इट. ओके, चलिए. ये भी एक दूसरा मैप है, इसमें भी देखो वही सब सेम चीज़ें दी गई हैं. आई जस्ट अटैच्ड ऑल द पॉसिबल मैप सो दैट रेफरेंस में जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर लें, क्योंकि ये बहुत फेमस मैप आपको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएगा. नाउ कम टू द, तो हमने बेसिक गंगा रिवर सिस्टम समझ लिया, ट्रिब्यूटरीज समझ ली. नाउ वी विल हैव टू सी द डिटेल्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑल्सो एंड सम अदर रिवर्स ऑल्सो. ठीक है, जो उसके आसपास में आते हैं, कुछ ऐसे भी रिवर्स को हमको समझना है. सो विल डू दैट, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो वो किसी से भी पूछ देंगे. यमुना हमने देखा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, इधर से आ रही है, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न मोस्ट. ठीक है, सबसे वेस्टर्न में तो यही है ना, क्योंकि सोन तो इधर कहीं है, इधर कहीं है, और इधर वाले तो सारे इधर हैं. तो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना हो गई. व्हाट इज़ द सोर्स वी हैव सीन? हमने देख लिया यमुनोत्री ग्लेशियर. रेंज भी याद कर लेंगे, बांदरपंच रेंज. ठीक है, नाउ इफ इट्स अ ट्रिब्यूटरी इट विल कम एंड ज्वाइन गंगा समवेयर. कहीं तो ज्वाइन करेगी. सो इट ज्वाइन गंगा वेयर? प्रयाग, इलाहाबाद. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. संगम बोलते हैं, संगम एक और रीज़न से भी बोला जाता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. सो इलाहाबाद पे गंगा एंड यमुना मीट्स. ठीक है, प्रयाग इज द प्रेजेंट नेम, बट यू नो इट बाय इलाहाबाद ऑल्सो. ओके, नाउ यमुना विल ऑल्सो हैव इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना. यमुना में भी तो और रिवर्स आएंगे, ऐसा तो है नहीं.
अब यमुना की भी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो लेफ्ट बैंक यानी यमुना अगर ऐसे आ रहा है तो इसका ये लेफ्ट इधर हो गया, इसका ये राइट इधर है। सो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं राइट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। नाम देख लो, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक है। ये इधर से इधर से इधर से इधर से मिल के यमुना में मिल रही है और फिर यमुना इधर गंगा में आगे मिल रही है, ठीक है। बट ये सब देखो इसमें ऑलरेडी मिल जा रहे हैं। Some left bank tributaries are also there from this side, but they have also not given it much in the map and उतना important नहीं है, याद रखना। हिंडन आपने सुना होगा, ठीक है। हिंडन रिवर देखो, यहाँ रिंड रिवर है। हिंडन आपने सुना होगा, दिल्ली गाज़ियाबाद के आसपास का रीजन जब आप पढ़ते हो, दिल्ली और गाज़ियाबाद के पास में, तो आप गाज़ियाबाद के पास में बेसिकली रिवर हिंडन है। सेंगार, वरुण एट्सेट्रा, ये नाम आप यहाँ से याद कर लोगे, बट डो नॉट फॉरगेट अबाउट चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ओके। चलो अब नाउ विद इन दैट ऑल्सो नाउ यू विल हैव टू सी अबाउट, जिसमें इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट में वन यू रीड अबाउट चंबल रिवर। जस्ट सी द हाईलाइटेड पोर्शन जो मैं दिखा रही हूँ, जिस वक्त जो मैं दिखा रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन दैट। चंबल रिवर, ये देखो चंबल रिवर हो गया। चंबल रिवर ये यहाँ पे मिल रही है यमुना से, पर ये आ तो इधर कहीं से रही है, ठीक है। अब नाउ यू सी दिस इज़ दिल्ली रीजन, ठीक है। इधर ये क्या है, इधर तो उत्तराखंड रीजन था, दिस इज़ उत्तराखंड रीजन। हियर वी नो इट इज़ यूपी। इधर आके हमें पता है कि ये बिहार का रीजन है, ठीक है। इधर जो है ये बिहार का रीजन है, दिस इज़ झारखंड एंड दिस इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इधर कौन सा स्टेट है, वी नो विच स्टेट इज़ दिस इज़ मध्य प्रदेश रीजन। सो चंबल का ऑरिजिन कहाँ हो रहा है, नियर माउ प्लेट्यू, माउ इन द मालवा प्लेट्यू। So again, if you have done the physical features, you know about the different plateaus. जैसे if you read about the nearby झारखंड locations, you know the plateau छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, तो वहाँ पर क्या है, मालवा प्लेट्यू, एमपी रीजन में, ठीक है। अब ये नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और देखो इधर राजस्थान भी है, कोटा के पास पहुँच रही है, फिर और भी रीजन से पास करे, बुंडी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ठीक, इधर राजस्थान के रीजन से क्रॉस करते करते फाइनली, अभी सारा तो आपको मैप में वो नहीं दिखाएंगे बिकॉज इट्स पॉसिबल नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर, सो जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर आई हैव हाईलाइटेड। इधर से जाते 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 दिस इज मीटिंग यमुना हियर। वाई इज चंबल फेमस? फॉर अ बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड एज चंबल रिवीन्स। अगेन दिस इज समथिंग टू बी डन इन द फिजिकल फीचर्स, विल टॉक अबाउट इट इफ वी डू दैट सेगमेंट। नेक्स्ट इज गंडक एंड घाघरा, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सो चंबल वाला कर लिया हमने, एमपी समझ लिया, यमुना समझ लिया, राजस्थान समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज गंडक। गंडक देखते हैं। बिफोर रीडिंग द थ्योरी फाइंड इट आउट इन द मैप सो दैट इट रिमेन्स इन योर माइंड, ठीक है। देखो गंडक यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये इधर इधर होते 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 यमुना को कहाँ, सॉरी गंगा को कहाँ मिल रही है, ये गंडक है, ये मिल रही है कहीं तो बिहार में, पटना से थोड़ा सा पास में, देखो कहीं पे समवेयर देयर। एंड ओरिजिन कहाँ से दिख रहा है, नेपाल के आसपास से दिख रहा है, सो इट हैज़ अ रिलेशन विथ नेपाल, दैट मच वी हैव अंडरस्टूड। नाउ गंडक कंप्राइजेज 2 स्ट्रीम्स, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये आपको थियोरेटिकली याद करना होगा। और इफ़ यू गो बाय द डिटेल्ड मैप सर्च ऑफ ईच ऑफ देम, लाइक चंबल का अलग से, गंडक घाघरा का अलग से, फिर आप कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि वो ओवर हो जाएगा, मतलब फिर ना याद, अगेन द पॉइंट इज़ याद रखना डिफिकल्ट होगा। सो कुछ कुछ चीज़ को थ्योरी में याद कर लेंगे, मैक्सिमम तो मैप में अवेलेबल है। सो गंडक के 2 स्ट्रीम को याद रखेंगे, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, राइट। कहाँ राइज हो रहा है, नेपाल हिमालयाज वी हैव सीन, बिटवीन द धौलागिरी एंड द माउंट एवरेस्ट। सो इफ़ यू नो द माउंटेन पीक्स एंड ऑल ऑफ दीज, आपको समझ आ जाएगा। नाउ इट इज़ एंटरिंग द गंगा प्लेन, वेयर इन द बिहार, ये तो हमने देख ही लिया, कहाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड देन जॉइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। सो अब ये मैप से बहुत आसान हो जा रहा है विजुअलाइज करना। सो गंडक इज डन। देन घाघरा, इट ओरिजिन, अच्छा पहले मैप में समझते हैं। देखो यहाँ भी घाघरा लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले भी कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये और कहीं से आ रहा है। ये देखो घाघरा मिल रहा है, अब ये कहाँ, यहाँ तो ये मिल रहा है पटना से पहले, तो दिस इज मीटिंग गंगा, बट ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। आता हुआ कोर्स दिख गया हमको, चलो। सो द घाघरा ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचाचुंगो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम याद रखना, बट जस्ट फोकस ऑन इट, क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद
इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा, बट अब NCERT में है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे. दैट इज़ वाई मल्टीपल रिविजन इज नीडेड फॉर इट. सो तीला, सेती एंड बेरी, ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम है. बाद में फिर माउंटेन से आने के बाद ये शिशापनी पर जॉर्ज बनाती है. अब अगेन फिजिकल फीचर्स हैं, अभी भी कैन नॉट डू एंड यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ इट ऑल्सो. सो एटलीस्ट ग्लेशियर का नाम याद रख लेना. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. दिस इज़ द रिवर शारदा. हमेशा जब भी ये कॉन्ट्रोवर्शी होती है इधर उत्तराखंड के पास के रीजन की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं. सो दिस इज़ ऑलवेज इन न्यूज़. काली गंगा, काली या रिवर शारदा, एंड देन इट मीट्स गंगा एट छपड़ा. छपड़ा भी कहाँ है? बिहार में है, पटना के पास. यहाँ देखो, ठीक है. तो ये देखो शारदा रिवर, ये देखा शारदा रिवर, जिसका यहाँ पे मेंशन है दैट इट जॉइंस इट इन द प्लेन. तो ये ऐसे बेसिक छोटी छोटी चीज़ें यू कैन रिमेंबर. आई जस्ट मार्क शारदा एज वेल. ओके, चलो नेक्स्ट इज अबाउट कोसी. Please tell in the comment section if you have done your topics, and I hope because it is a revision series. Antecedent river क्या होता है? अगर आपने बेसिक्स ऑफ ड्रेनेज पढ़ा है तो ये आपको पता होगा. कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर. कोसी है कहाँ भैया? चलो पहले को ढूंढते हैं. ये देखो मिल रहा है. और अगर गंगा में ज्वाइन करते हुए ढूंढते हैं, यहाँ से ऐसे ज्वाइन होते हुए फिर यहाँ जाती है कहीं पे, तो यहाँ समवेयर यू नो लाइक दिस. तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कोसी. अब सोर्स कहाँ है? नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत. अब ये तो हमें दिख ही रहा है कि इधर तिब्बत रीजन है, ठीक है. सो कहाँ है? नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत. वहाँ पे उसका एक मेन स्ट्रीम है रिवर अरुण, वो राइज करता है. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट रिवर अरुण इज रिलेटेड टू कोसी. ओके, देन इट क्रॉसेज द सेंट्रल हिमालयाज, इधर तिब्बत से होते हुए, नेपाल होते हुए, फिर सोन कोसी से जुड़ती है एंड तामूर कोसी से भी जुड़ती है. तो ईस्ट और वेस्ट में भी इसके दो रिवर्स हैं. आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इफ दे गिव यू द फुल नेम सोन कोसी और तामूर कोसी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो इसलिए वो देंगे भी नहीं मेरे हिसाब से. देन इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण. इतना डिटेल याद रखना नहीं पॉसिबल होगा. सो व्हाट आर द 2-3 इन्फॉर्मेशन यू विल रिमेंबर? एंटीसीडेंट, तिब्बत एंड रिवर अरुण इज रिलेटेड टू इट, ठीक है. और बस मैप में थोड़ा सा ध्यान रख लेना. आई होप दैट मच इज क्लियर. नेक्स्ट इज रामगंगा, दामोदर, शारदा एंड महानंदा. शारदा तो हम अभी ऊपर देख ही चुके थे, बट आगे भी कर लेंगे. एंड सोन. अगेन वेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड, सो आई हैव हाईलाइटेड इट. जो भी काम का है मैंने हाईलाइट कर दिया है. रामगंगा, ये देखो रामगंगा है यहाँ, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ से, ये गंगा को यहाँ पे मिल रही है. सो इट इज़ अ स्मॉलर रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स इन द गायरसार एरिया, ठीक है. गढ़वाल हिल्स हम पढ़ते ही हैं, कुमाऊँ गढ़वाल ये सब पढ़ते हैं. बाकी इसका कोर्स चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू विल नॉट बी एबल टू, सो फॉरगेट अबाउट इट. इट जस्ट एंटर्स इनटू द यूपी प्लेन नियर नजीबाबाद. कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का, बट इट जॉइंस गंगा नियर कन्नौज, ठीक है. ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लेना है. तो कन्नौज ढूंढ लेते हैं. यू विल सी हियर रामगंगा और यहाँ पे गंगा. सो कन्नौज यहाँ है, इसके पास में ये मिल रही है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट इट यूजुअली विल हेल्प यू टू रिमेंबर, और कोई ऐसा बात नहीं है. तो ये हमने कर लिया. देन दामोदर, ये रिवर देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है. सो दामोदर से गंगा का कनेक्शन इधर नहीं हो रहा है. कहाँ हो रहा है? ये गंगा इधर ऐसे आ रही है हुगली और फिर इधर बे ऑफ बंगाल में, और दामोदर यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है. सो दामोदर ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू. मैंने बताया था झारखंड, प्रेजेंट डे झारखंड एरिया. तो अगर इधर से देखते हैं, इधर से किसी के आते हुए, तो ये ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है. एंड फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली एंड जॉइंस द हुगली रिवर, ठीक है. दामोदर एंड हुगली. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ ये क्वेश्चन में बहुत जगह आता है स्टेट सर्विसेज और इसमें, ठीक है. बाराकर इज द मेन ट्रिब्यूटरी, सो यू विल रिमेंबर इट इज एसोसिएटेड टू दामोदर. इट वॉज ऑल्सो वंस नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल. वाई? प्लीज टेल इन द कॉमेंट सेक्शन. अब तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट पे काम होता है एक्सेट्रा, बट वो हमको करना नहीं है. जस्ट रिमेंबर these 3 information, just remember the highlighted information and you are good to go. Okay, then Sarda और सरयू रिवर, अभी हमने बात की थी इसकी. सो इट राइजेज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय. इसीलिए इसको लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है, ठीक है, इंडिया नेपाल और ये सब में, जहाँ पे उसका नाम होता है गौरी गंगा. आप जब भी पढ़ोगे उत्तराखंड का डिस्प्यूट ये सब ना, इस लोकेशन को लेके यही सब रिवर्स उसके आसपास आएंगे. अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज़ कॉल्ड एज काली और चौक व्हेन इट जॉइंस द घाघरा. हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था ना घाघरा के बारे में. शारदा, काली, काली गंगा, सेम चीज़ है, ठीक है.
फिर से देख लेते हैं, शारदा हो गया, घाघरा हो गया, तो ये इधर से है और ये इधर से ज्वाइन कर रहा है। चलो नेक्स्ट इज महानंदा। महानंदा कहाँ लोकेट किया था हमने, यहाँ, तो ये इधर से आ रही है और इसको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिल रही है, देखो भागलपुर रीजन है इधर, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला इधर के पास का रीजन है। सो महानंदा इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल्स, है ना, बंगाल साइड से, जॉइंस गंगा एज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो इधर से आते हुए वट एवर रिवर्स आर ज्वाइनिंग इट फ्रॉम दिस साइड, दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो लास्ट कौन सा है, महानंदा, वेस्ट बंगाल में। सोन, सोन क्या है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट साइड का है बट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट्स इन द अमरकंटक प्लेट्यू, क्योंकि इधर से जा रहा है ना, इधर हमारा पूरा एमपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। देन इट रीचेज आरा वेस्ट ऑफ पटना टू जॉइन गंगा। बस उतना ही इन्फॉर्मेशन याद रखना है। सो हियर वी आर डन विद द गंगा रिवर सिस्टम। आधा घंटा लगा है, अब आप देख लो कितना एनरिच्ड इन्फॉर्मेशन है, हाउ मच ऑफ इट यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। इसलिए इसको बिल्कुल आराम आराम से ब्रेक करके करना। इफ़ टू मच विल बी देयर फॉर यू देन जस्ट यूज 2 to 3 स्लाइड्स फॉर यू नो लाइक वन गो याद करने के लिए, फिर आगे। ऑल्दो आई हैव हाईलाइटेड द इन्फॉर्मेशन फॉर यू सो दैट यू ओनली हैव टू डू द हाईलाइटेड पार्ट, सो इससे आपका वर्क काफ़ी कम हो जाता है, बट ऑफकोर्स यू विल हैव टू रिमेंबर। वेरी क्विकली रीचिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ टर्मिनोलॉजीज, जहाँ हम हिस्ट्री के टर्म्स कर रहे हैं। हम 2 ही कर रहे हैं, ऐसा मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि इसको थोड़ा लाइटर सेशन रखेंगे सो दैट आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो इतने ओवर फैक्ट्स याद करने में। छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम ऑलरेडी खूब सारे टर्म्स ख़त्म कर लेंगे। नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू द टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन। देखो बहुत सारे टर्म होते हैं, कोई भी बुक दैट यू विल कवर इट विल हैव n नंबर ऑफ टर्म्स, इट्स नॉट पॉसिबल अगेन टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इट स्टार्टिंग पॉइंट इज PYQs, कम से कम उसमें जो दिया है उसको तो पहले ख़त्म करेंगे। Then we'll move to the books का जो भी additional चीज़ है ना, how do we filter out what is important, what is not. Somebody had once like when I was taking classes, जब मैं live classes लेती थी अनअकैडमी पे, तो मुझसे किसी ने पूछा था एक व्यक्ति कि मैम इस तरह के जो क्वेश्चन, इनफैक्ट एक्चुअली मेरे लाइव सेशंस में भी व्हेन आई स्टार्टेड द अंजन कलश इनिशिएटिव, तो मैंने एक वेबिनार लिया था एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन दैट मैम हाउ डू वी टैकल दीज टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस विच आर नॉट गिवन इन एनी बुक। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे टर्म्स देखोगे, परमिताज, कुलव्याप, द्रोणाव्याप, you'll not believe मुझे सिर्फ इन टर्म्स के बारे में फाइंड आउट करने में इतना टाइम लग गया। एटलीस्ट हाफ एन आवर आई हैड टू स्पेंड ऑन इंटरनेट एंड अदर टर्म्स। नाउ दैट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इंटरनेट पे तो सारे कोचिंग के इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ वी कुड हैव फिगर्ड आउट कि ऐसा कुछ वो पूछ सकते हैं, एक्चुअली मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दीज पॉइंटर्स, हमें कैसे पता लगेगा कि इनको प्रिपेयर कहाँ से करें, बिकॉज दे आर नॉट गिवन इन द स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? ओके, nobody can firstly give you the clear answer to this, but in best of my capacity, whatever my thought process says, that I'll tell you, and I'll justify it with certain arguments as well. First, if you are able to prepare to some extent, do that, else leave that question, because if you are not knowing, others are also not knowing. तुक्के में उनका सही हो जाता है, that's a different thing. ठीक है. Second, do not underestimate the power of PYQs. I'll just show you right now. You have to read each and every word and option of the PYQ and it will give you much hint. How? I'll tell you. Let's see the first question. दोनों 2020 के question है. With reference to the cultural history of India, which is the correct description of the term paramitas. I tried to search it Google और ये सब पे, कोचिंग्स को छोड़ के, और कहीं पे आंसर नहीं मिल रहा है। कोचिंग में भी आया हुआ है इसलिए मिल रहा है। ठीक है, द आंसर इज perfections whose attainment led to the bodhisattva path. चलो ठीक है, आंसर तो पता लग गया। Now, even though it was not given anywhere, it's not even possible for us to do everything from n number of sources, but we know that bodhisattva as a concept has been asked n number of times in the paper in different forms. ये तो हमको पता है ना, महायान बुद्धिज्म का ये फीचर we have done in the previous video also where we did about the bodhisattvas. At least इतना तो हमें पता था. So that is definitely our homework that we have to do additional. जो कहते हैं ना UPSC में कि PhD नहीं करना है, that is true. That is true for most of the topics. But for certain topics PhD करना पड़ेगा. PhD से मेरा मतलब है deep research, right? So बोधिसत्वा से related अगर कोई question पूछा जा रहा है then you cannot say कि कुछ बहुत ही weird था. Although it's again practically I know it's difficult. Now
सो हियर आई हैव टेकन अ क्लिप फ्रॉम उपेंद्र सिंह, बहुत ही फेमस बुक है एंशंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया की, ठीक है, ग्रेजुएट्स हिस्ट्री के सब पढ़ते हैं, ऑप्शनल वाले भी पढ़ते हैं, बट जीएस में हम इसको नहीं पढ़ते, वी डू नॉट स्टडी इट इन जीएस एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। लेकिन द पॉइंट आई वॉज मेकिंग इज कि बोधिसत्व तो पढ़ना पड़ता है ना, तो इसका थोड़ा एडिशनल डिटेल तो करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट टू वन पर्टिकुलर सोर्स सेइंग कि इस किताब में नहीं दिया है, because UPSC has not given you any book list. I'm not recommending you to read this source. The only thing I'm recommending you is that research on this word. That is it. Okay, this is just attached for your reference so that you know that I've taken it from an authentic source. That's the only reason of attaching it. So देखो यहीं पे लिखा हुआ है, the conduct and practices that formed part of the path leading to Buddhahood were not different from those recommended in the earlier tradition. Several stages along the Bodhisattva path. You know what is Bodhisattva? तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि एक स्टेज अटेन करने के लिए they will have to follow certain paths that involve the attainment of a number of perfections. उन perfections को परमितास कहा जाता है। Originally 6, later 10. जैसे for example, now next question could ever be on details of कि which of these is included in paramitas. पूछ सकते हैं ना भाई, तो देख लेते हैं। जेनरोसिटी, दान, गुड कंडक्ट, शील। अब शील पूछ सकते हैं, हम कहते हैं ना शीलम परम भूषणम, आप पढ़ते हो लबासना का वो शील, गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, ठीक है। शांति, पेशेंस, फोरबियरेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, वीर्य, मेडिटेशन, ध्यान, विजडम, प्रज्ञ, स्किलफुलनेस इन मीन्स, उपाय, कौशल्या, डिटर्मिनेशन, प्रानिधान, पावर, बल, नॉलेज, ज्ञान। सो एटलीस्ट रिमेंबर दिस। चलो सेकेंड पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल व्याप एंड द्रोण व्याप डिनोट व्हाट? आंसर इज लैंड मेजरमेंट। ऑफकोर्स कहीं नहीं मिला मुझे स्टैंडर्ड उसमें, ठीक है, इनफैक्ट कोई सोर्स में भी नहीं मिला, मुझे दृष्टि आया से उठाना पड़ा। आई डिड नॉट वांट टू यूज़ एनी कोचिंग मटेरियल फॉर अ रेफरेंस, लेकिन मिला ही नहीं, मैं भी क्या करूँ, जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो हियर यू कैन सी इन द गुप्ता एरा द टर्म्स कुल व्याप, द्रोण व्याप, आधा व्याप वर रिलेटेड टू लैंड मेजरमेंट। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ, बाकी पढ़ लेना। नाउ यू सी, so coming back to the original question of कि ma'am how do we prepare the terms which are not found in the standard text? One, you leave the question, that's the safest thing to do. Second, if you want to take a calculated guess, take your guesses around the topics which are very frequently asked, like बोधिसत्व बहुत frequently पूछा जाता है ना। Although देखो इसमें अगर हम वैसे देखें ना तो मर्चेंट गिल्ड्स पे भी क्वेश्चंस तो रहे हैं, बट अगर इन दोनों में किसी एक को चुनना है तो बोधिसत्व पे ज़्यादा पूछा जाता है, इन दैट सेंस आई एम टेलिंग। दूसरी चीज़, हियर इट्स नॉट अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर, लेकिन इफ़ यू वुड नोटिस देयर आर सर्टेन ट्रिक्स टू बी डन इन द PYQs। नॉट एवरी ईयर दिस इज़ वैलिड, स्पेशली 23 के बाद तो ये रिस्की ही है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, वी नेवर नो हाउ इट बिकम्स यूजफुल। देखो कॉइन से रिलेटेड तो आपने भी देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे, अभी एक फनम भी पूछा था 2022 में, हम बात करेंगे इस पे, व्हेन विल कम टू दैट टॉपिक ऑल्सो। सो कॉइन्स यू हैव टू, जहाँ भी कोई भी किताब पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, जहाँ कॉइन आ रहा है बी मोर अटेंटिव। लैंड पे अब एक बार ऑप्शन आ गया लैंड मेजरमेंट, सो बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। ऊपर से नाउ वी नो दैट इट इज़ अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एरा, तो गुप्ताज वैसे भी दे आर वेरी फेमस, सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रिसर्च विल डू ऑन गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। दूसरी ट्रिक जो UPSC में काम करती है दैट इज़, सो अगेन यहाँ पे 50-50 लोग गलती कर सकते थे कि लैंड या कॉइन्स में कुछ भी चूज़ करते, बिकॉज दे बोथ आर वेरी प्रोमिनेंट ऑप्शंस। प्रोमिनेंट इन द सेंस कॉइन्स एज अ थीम हैज़ बीन फीचर्ड आउट लाइक मल्टीपल टाइम्स, तो रिस्क तो था। दूसरी चीज़ जो UPSC में फिगर आउट करती है ना, दैट इज़ दैट इफ़ यू हैव टू सिमिलर ऑप्शंस इन द सेंस टू ऑप्शंस रिलेटेड टू अ सिमिलर थीम, सो वन ऑफ देम इज़ लाइकली टू बी करेक्ट। ऐसा अभी तक देखा गया है, बट ऐसा मैं इस पर कोई ऐसे ना, वो कहते हैं ना ऐसे ट्रिक्स ट्रिप्स नहीं बता रही हूँ, दिस इज़ जस्ट टू हेल्प यू रीच टू अ 50-50% वाला पॉइंट। अप्लाइंग दैट लॉजिक यू सी देयर वॉज टू ऑप्शंस रिलेटेड टू लैंड, लैंड मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। इतना तो समझ आ सकता था कि वन ऑफ देम कुड बी ट्रू, लाइक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती कि वन ऑफ देम कुड बी ट्रू लैंड से। अब है कि यार पुराने उतने हम समय की बात कर रहे हैं, थोड़ा अर्बन लैंड पे बात करना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लैंड मेजरमेंट, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग सकता है। इवन इफ़ यू कुड हैव मार्क दिस तो भी गलत होता, बट 50-50 पे तो हम तब भी पहुंच सकते थे, ठीक है। बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दीज पॉइंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग कि जब कुछ नहीं समझा और कुछ अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे सोच सकते हैं,
बट अल्टीमेटली ये सब नॉलेज बेस्ड होता है और इतना नॉलेज हम यूजुअली कहीं से गेन नहीं कर सकते. सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, लाइक फ्रॉम दिस वी हैव लर्न हमें बोधिसत्वा को बहुत डिटेल में पढ़ना है. एंड वॉट एवर दे हैव रिटन इन ऑल दी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर करो. बट यहाँ पे भी हमें पता है कि आप कहीं भी हिस्ट्री में यू आर स्टडिंग एनी थिंग अबाउट लैंड, यू आर स्टडिंग एनी थिंग अबाउट कॉइन, यू आर स्टडिंग एनी थिंग अबाउट एनी रिलीजियस रिचुअल का नाम, ठीक है, जैसे मान लो अश्वमेध यज्ञ हो गया, कुछ भी ऐसा. सो वो सब पे फोकस ज़्यादा करना है. दैट इज़ द मैक्सिमम वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड. अब वो कितना पे ऑफ करेगा नहीं करेगा नोबडी नोज. ठीक है, चलो क्विकली फिनिशिंग इट विद द लास्ट थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज़. अभी हम सिर्फ 4 याद करेंगे. टोटल बताना कितने होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द होल ऑफ इट बट जस्ट गिव मी द नंबर ऑफ इट. ठीक है, शुरू के 4 याद करते हैं. व्हाट आर द 2 अदर थिंग्स वील रिमेंबर? इट इज़ गिवन इन पार्ट 4A. एंड आर्टिकल, ओनली 1 आर्टिकल 51A. ठीक है, किसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. टेल मी द अमेंडमेंट ऑल्सो, एल्स विल रिवाइज समडे, सो विल डू दैट ऑल्सो. बट अभी के लिए 4 याद करेंगे. सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया. फंडामेंटल ड्यूटी है तो किसका ड्यूटी है? सिटीज़न का. हम नॉन सिटीज़न के लिए यानी एलियंस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिटीज़न के लिए. फर्स्ट, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगेन आई हैव जस्ट हाईलाइटेड द कीवर्ड्स कि 51A का ए में क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, फ्लैग, एंथम. बस इतना ऐसे कोड वर्ड्स टाइप बना के याद कर लेना, ध्यान रहेगा. सबसे पहला ये है. देन वी हैव अचीव्ड आवर फ्रीडम. ठीक है, तो देयर वाज सो मच ऑफ स्ट्रगल इन दैट विच ऑल्सो इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ नोबल वैल्यूज, सो वी नीड टू चेरिश एंड फॉलो देम. राइट. थर्ड, ये तो PYQ में पूछा गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया है. सो देखो ये दे के पूछा गया है दैट इट इज़ अ प्रोविजन मेड इन प्रियम्बल, DPSP, राइट और ड्यूटी. वाई वॉज इट कन्फ्यूजिंग? नॉट बिकॉज ऑफ DPSP और राइट बट बिकॉज ऑफ preamble. The terms like sovereignty, unity and integrity has been mentioned also in preamble. But here there is a statement of upholding and protecting. So preamble or fundamental, or most of the people would have just seen this and marked preamble, I can guarantee. So you have to focus on this word also because the answer would be duty. ठीक है. And last क्या है? Defending the country and give national service whenever you are asked to do so. तो ये चारों भी आप देखो देश के सेवा और ये सबसे रिलेटेड है. ये भी एक तरीका है इन 4 को ध्यान रखने का. कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी चीज़ें दी गई हैं. ऑल्दो पहले तो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, लेकिन फॉलो सब कुछ कहाँ से होना शुरू? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, फ्लैग, एंथम, वेरी प्रोमिनेंट. देन दोज, अब ऐसा नहीं है कि आफ्टर अटेनिंग फ्रीडम यू विल फॉरगेट दोज आइडियाज़ जिसकी वजह से हमें ये मिला. नहीं तो सारा मेहनत ही चला जाएगा जो हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं, ठीक है, मार्टर्स रहे हैं, जितने लोगों ने स्ट्रगल करा है. देन अब हम यूनाइटेड इंडिया पे पहुंच चुके हैं. सो वी नीड टू बी इंश्योर और वी नीड टू इंश्योर दैट सोवरेनिटी मेंटेन रहे, यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. अब मान लो अचानक से बाहर से वी नीड टू वी फेस एनी प्रॉब्लम, सो वी शुड बी रेडी टू डिफेंड आवर कंट्री, वी शुड बी रेडी टू गिव द नेशनल सर्विस. समझ आ रहा है? ऐसे भी कहानी की तरह लिंक कर सकते हैं. सो ABCD विल रिमेंबर, रिमेनिंग विल डू सम अदर डे. आई रिमेंबर DPSP का लास्ट सेगमेंट बाकी है, बट अभी अगर आज हम DPSP करते तो ओवर हो जाता क्योंकि गंगा वाला बहुत ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, इसीलिए हमने टर्म्स भी 2 ही लिए हिस्ट्री के. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड द सेशन डे 3 एंड आई सून मीट यू इन द डे 4. मैं थोड़ा टाइम लेके ही वीडियोज़ डालूंगी फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट इट रिक्वायर्स रिसर्च. दूसरी बात, यू विल ऑल्सो टेक टाइम, नीड टाइम टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. इतना ओवर फैक्ट आप एक बार में नहीं याद कर पाओगे. सो यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल क्योंकि वहीं से इन्फॉर्मेशन आएगा. नाउ आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर टिल देन, बाय बाय.